ایران امریکہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے جامع اور مسلسل سفارتی کوششیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایران کے سفیر کی اسلام آباد میں ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں امن کوششوں پر بات چیت۔ ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ مذاکرات آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران متوقع ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو۔ امریکی صدر کا پاکستان کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان، آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پر ایران پر حملے روک رہا ہوں، ایرانی قیادت کی جانب سے مثبت تجاویز موصول ہونے تک جنگ بندی میں توسیع جاری رہے گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع پر اظہار تشکر۔ اپنی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جنگ بندی میں توسیع سے سفارتی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ پاکستان تنازع کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے فریقین جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی مذاکرات میں شرکت پر مشروط آمادگی، آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونے پر ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی ناکہ بندی ختم ہوتی ہے، ایران مذاکرات کے اگلے دور کے لیے اسلام آباد آ جائے گا۔ امریکہ سیاسی حل چاہتا ہے تو تیار ہے، اور اگر جنگ چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایراوانی کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ یہ آخری فالس فلیگ آپریشن تھا جو بھارت نے کیا پہلگام کی آڑ میں آپریشن سندور کیا، جس کا افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا مارکہ حق میں اور آپریشن بنیان مرصوص میں۔ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی، پاکستان کو اس پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے۔ بھارت آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ پہلگام واقعہ پرانی ٹیکسٹ بک جیسا معاملہ تھا۔ فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخ رہی ہے۔ بھارت کی کھوکھلی سوچ اور مکاری دنیا پر واضح ہو چکی۔ پہلگام کی آڑ میں آپریشن سندور کا ڈرامہ رچایا گیا، جس کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر یکسو ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا 1 سال مکمل ہونے کے تناظر میں خصوصی گفتگو۔ بھارتی عسکری قیادت کی حالیہ سٹیٹمنٹس نئے آپریشن سندور کے بارے میں ان کی شکست کا اعتراف ہے، اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کسی بھی قسم کا اگر مس ایڈونچر بھارت کرے گا تو بھرپور، فوری اور منہ توڑ جواب اس کو دیا جائے گا، اور یہ جواب فیصلہ کن جواب ہوگا۔ بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرتا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ بھارتی عسکری قیادت کے نئے آپریشن سندور کے بارے میں حالیہ بیانات دراصل ان کی ناکامی اور شکست کا اعتراف ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری، وقار اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ بھارتی شہری جو فالس فلیگ ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے، ہم ان کا بھی اظہار افسوس کرتے ہیں۔ 22 اپریل بھارت کے فالس فلیگ کا آخری دن تھا۔ بھارت دوبارہ ایسے فالس فلیگ کی جرت نہیں کرے گا۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد بھارت کے فالس فلیگ کا بیانیہ زمیں بوس ہو گیا۔ پاکستان اتحاد، یکجہتی اور قومی عزم کے ساتھ ایک روشن ستارہ بن کر اقوام عالم میں ابھرا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان امن کی علامت کے طور پر سامنے آیا، جبکہ بھارت تنہائی کا شکار ہے۔ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی جارحیت کا فوری، مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔
भारत ने गुज़श्ता साल आज के दिन पहलगाम की पुरसुकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खून में नहला दिया। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल किया। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत के मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। Indian mainstream media, many of them notorious for their jingoism, sensationalism, and their ability to produce hate speech. न्यूज़ चैनल भी इतनी पागल हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलने के लिए। वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं? Indian media have developed a poor reputation. Television in India today is suffering a large-scale credibility crisis and not doing the very basic of journalism, which is asking questions to those in power and authority. टनलों पे देखो हिंदू मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूँ इनकी यंत्री कहाँ पर है? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना बयानियाँ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया ने बगैर सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया। आलमी मीडिया ने पहलगाम के हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को बेबुनियाद और हकाइक से मुबर्रा करार दिया। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रिपोर्टिंग को भारत के अंदर से भी तनकीद का सामना करना पड़ा। मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हजीमत और रुसवाई का सफर ताहाल जारी। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने पहलगाम वाक़े को इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी करार दिया था। मोदी एक दहशतगर्द है क्योंकि इसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। मोदी को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था, जिस पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा मनसूख किया था। कांग्रेस रहनुमा का दावा। मार्का हक ने ये साबित किया दैट वी आर वन नेशन, वी आर वन कंट्री एंड वी आर विद आवर। मार्का हक के एक साल बाद हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपने आप को एक रीजनल पावर, एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पे पेश किया और कैसे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के लोग एक पेज पे हैं। हमने दुनिया को साबित किया है हम हर हमले के लिए तैयार हैं। मार्का हक के बाद हम पहले से ज्यादा फोकस्ड हैं, मोटिवेटेड हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जो एक जिस तरह से सराहा जा रहा है वो पहले इस तरह से नहीं था। इंडियन एग्रेशन जो हम पर फॉल्स फ्लैग की सूरत में सामने आया, उनको वहमो गुमान में भी नहीं था पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक ऐसा रिएक्ट करेंगी कि ये उनके लिए एक डाउनफॉल की सूरत में सामने आएगा। जब पाकिस्तानीज अपनी वैल्यूज के साथ चलते हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, so there is nothing that we can't. Pakistan looks to be a more confident world now, sees us as a strong and as a peaceful nation, as a net stabilizer. That is something to be very proud of because unity ने हमें strong बनाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह पर नौजवानों के वलवला अंगेज पैगामात। नौजवानों का मार्का हक में शानदार फतह पर मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन। पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। तहरीके आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने के लिए भारत पहलगाम वाक़े को इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की साजिश भारतीय एजेंसीज ने रचाई थी। वाक़े के फौरन बाद भारत ने कोई काबिल एतमाद सबूत पेश किए बगैर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। एक साल बाद भी भारतीय हुकाम इस हवाले से झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम पर अहम जायज़ा इजलास। इंसदाद पोलियो इक़दामात पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में बेहतर रसाई से पोलियो वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों की तादाद में कमी हुई है। रवां साल पोलियो का सिर्फ एक केस ज़िला सजावल से रिपोर्ट हुआ। 2024 में पोलियो के 74 और 2025 में 31 केस रिपोर्ट हुए थे। पोलियो के खिलाफ जंग में इंसदाद पोलियो टीम की भरपूर कोशिशों की तारीफ। मुल्क से पोलियो के मूजी मर्ज़ के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुल्क गिर तरवीज के लिए जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के लिए इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। ईवी गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। वज़ीर आज़म की कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर दी जाने वाली सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत।
नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए बातचीत और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है, बरतानवी हाई कमिश्नर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, बदलती इलाकाई सूरत हाल और मुस्तक़बिल की बैनुल-अक़वामी मसरूफियात का जायज़ा। नायब वज़ीर आज़म का वज़ारत ख़ारिजा हुक्काम के साथ उभरती आलमी और इलाकाई तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और लबनान के साथ जोसेफ ऑन के दरमियान टेलीफोनिक राबता, लबनान और खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। लबनान के सदर का मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली-ए-अहद से इजहार तशक्कुर। सऊदी वली-ए-अहद का लबनान की खुद मुख्तारी, वसाइल, इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद बरकरार रखने से मुतालिक कोशिशों की हिमायत के अज़्म का अयादा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम, कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम करार, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे, UN सेक्रेटरी जनरल। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल, जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। चीन बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है, तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। वफाकी वज़ीर अवैस अहमद खान लगारी का बिजली तकसीम कार कंपनियों का छोटे पावर प्रोड्यूसर से मेरिट ऑर्डर के बरक्स बिजली खरीदारी का सख्त नोटिस। बिजली तकसीम कार कंपनीज को फौरी नेपरा कवानीन के तहत तमाम बिजली खरीदारी के अहकाम जारी। मामलात की इंक्वायरी का हुक्म, कम से कम कीमत के पावर प्लांट्स पहले चलाने पर हर हाल में कारबंद रहने के भी अहकाम। किसी भी छोटे पावर प्लांट से बिजली फराहमी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मेरिट ऑर्डर पर पूरा उतरने के बाद ही दी जाएगी, पावर डिवीजन। पाकिस्तान के खलाई तहकीक के सफ़र में अहम संग मील, स्पार्को के इंसानी खलाई मिशन प्रोग्राम में अहम पेशरफ। खलाई तजुर्बात के लिए नामजद 2 खलाबाज उम्मीदवार खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली तरबियत के लिए चीन रवाना। पाकिस्तान इन महदूद मुल्कों के सफ़ में शामिल हो गया है जो इंसानी खलाई परवाज़ों के प्रोग्राम में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। रवां साल के आखिर में जाने वाले मिशन के दौरान चाइना स्पेस स्टेशन पर पाकिस्तानी खलाबाज माइक्रो ग्रेविटी में मुतादिद साइंसी तजुर्बात अंजाम देंगे। Oh, it's hit on the pull shot into the slot, and that's gone. Oh, bowled him! The stump goes flying. Flicked and is gone. Score a scholarship. Add that. Full toss, lifted for 6. पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11, पिशावर ज़ल्मी की फतूहात का सिलसिला जारी। ज़ल्मी ने नाकाबिले शिकस्त रहते हुए कराची किंग्स को 7 विकेटों से हराकर 8वीं कामयाबी अपने नाम कर ली। किंग्स के जैसन रॉय की 85 रन की इनिंग्स रायगा, अली रजा ने 4 विकेटें हासिल की। पिशावर ज़ल्मी ने 183 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। रोशल मेंडिस के 80 और फरहान यूसुफ के 58 रन। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। That's an edge, and that's gone away very quickly as well. Now that's picked up, that's smashed, that's gone for 6, that's a beauty. Oh, he's clubbed that, that's a beauty, that's gone for 6. Akif into his second over, and it's been smashed down the ground. First ball, Koki shouting batters are soft. That has been कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का 33वां मैच, मुल्तान सुल्तान्स का हैदराबाद किंग्स मैन को 214 रन का हदफ। स्टीवन स्मिथ की शानदार सेंचुरी, सिर्फ 47 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। स्मिथ ने 6 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 106 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 43 गेंदों पर 66 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद किंग्स मैन की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
اور ایشین چیمپئنز لیگ ایلیٹ جاپانی کلب ماچیدا زلویا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم شباب الاہلی کو 1 گول سے شکست۔ میچ کا واحد گول یوکی سوما نے سکور کیا۔ فائنل میں زلویا کا مقابلہ دفاعی چیمپئن سعودی کلب الاہلی سے 25 اپریل کو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہی بات، پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔ آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔ خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔ سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بار وقت۔ اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جامع اور مسلسل سفارتی کوششیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ اس دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں جاری امن کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور پر جلد پیش رفت کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے اور اس میں اچھی خبر متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ کے ساتھ گفتگو میں کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ 36 سے 72 گھنٹوں میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اور پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی سفارتکاری کے افق پر مرکز نگاہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر ایران پر حملے روک رہا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کی تجاویز اور بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع پر اظہار تشکر۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع پر میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہہ دل سے صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کے اعلان سے سفارتی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تنازع کے حل کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ہم مذاکرات کے دوسرے دور میں ایک جامع امن معاہدے کے لیے پر امید ہیں جس کی کامیابی سے اس تنازع کا مستقل خاتمہ ممکن ہو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ تمام فریقین جنگ بندی کی مکمل پاسداری کریں گے اور اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کے دوسرے دور کے دوران ایک جامع امن معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت پر گفتگو کرتے ہوئے تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے مکالمہ ہی مؤثر راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے گزشتہ ہفتے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی ترک حکومت کی جانب سے پرتپاک مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر 4 ملکی اجلاس کی میزبانی پر بھی ترکی کا شکریہ ادا کیا جس میں ترکی، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کے بعد چین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اب ایک انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فوری ترجیح یہی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ لڑائی کو دوبارہ شروع ہونے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال جنگ اور امن کے درمیان ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پر 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بحری جہاز MSC فرانسسکا اسرائیل کی ملکیت ہے، جبکہ دوسرے جہاز پر پاناما کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دونوں جہازوں کو سمندر سے ایرانی ساحل کی جانب منتقل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز پر آج 3 جہازوں پر فائرنگ ہوئی، تاہم بحری جہاز اور عملے کے ارکان محفوظ رہے۔ میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان کے ساحل سے 15 ناٹیکل میل دور بحری جہاز پر حملہ بھی کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی گن بوٹ نے جہاز کے گھیراؤ کی کوشش کی، بحری جہاز پر فائرنگ بھی کی گئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور لبنان کے صدر جوزف آن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان اور خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر جوزف آن نے لبنان کی مسلسل حمایت پر سعودی ولی عہد کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد نے لبنان کی خود مختاری، اس کے وسائل، علاقائی سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کوششوں میں لبنان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں انسداد پولیو پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے پولیو کے موذی مرض کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے پولیو کے خلاف جنگ میں انسداد پولیو کی ٹیم کی بھرپور کوششوں کی تعریف کی۔ اجلاس کو انسداد پولیو اقدامات پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2026 میں اب تک پاکستان میں پولیو کا صرف 1 کیس ضلع سجاول سندھ سے رپورٹ ہوا ہے۔ 2024 میں پولیو کے 74 کیسز اور 2025 میں 31 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے اس سال اب تک پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں بہتر رسائی اور انسداد پولیو مہم کی وجہ سے پولیو خطروں سے محروم رہ جانے والے بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ کوئٹہ بلاک میں پولیو وائرس کے مقامی پھیلاؤ میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ستمبر 2025 سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ضلع بنو میں پولیو سے زیادہ متاثرہ یونین کونسلز کی تعداد 62 سے کم ہو کر 6 رہ گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اقدامات کو انسداد پولیو سے جوڑنے اور مشروط کرنے کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے جاری اقدامات میں تیزی لائی جائے۔ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ سے نہ صرف ایندھن کی درآمدی بوجھ میں کمی آئے گی بلکہ یہ ماحولیاتی تحفظ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ قومی EV پالیسی کے تحت کم آمدنی والے افراد کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر دی جانے والی سبسڈی میں شفافیت یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اسکیم کے نفاذ میں مزید تیزی لائی جائے۔ EV کی ملک گیر سطح پر ترویج کے لیے جاری اقدامات پر اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں الیکٹرک موٹر سائیکل رکشہ بنانے کے لیے 72 جبکہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے 4 مینوفیکچرنگ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں۔ EV چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے لیے اب تک 123 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئندہ 5 سالوں میں ملک میں 30% گاڑیاں بجلی سے چلنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس سے تقریباً 4 ارب 50 کروڑ ڈالر فیول کی بچت ہوگی، جبکہ گریڈ 16 تک کے سرکاری ملازمین کو آسان قسطوں پر الیکٹرک بائکس دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کرغز وزیر خارجہ جان بیکلوبایف کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا اور پاکستان اور کرغز تعلقات کی مضبوطی کا اعادہ کیا گیا۔ فریقین نے ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار اور نائب وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں فریقین نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے تنازعات کے پرامن حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور اس کی حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور مستقبل کی بین الاقوامی مصروفیات کے جائزے کے لیے اجلاس ہوا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم نے حکام کے ساتھ ابھرتی ہوئی عالمی اور علاقائی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔
उन्होंने वाज़ेह मकसद, तस्वीराती बसीरत, अहदाफ और नताइज पर भरपूर तवज्जो के साथ खारिजा पॉलिसी की तरजीहात पर फ़ाल शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर करा के दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग का शिकार होने से बचा लिया है। पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए आखिरी वक्त तक अपनी कोशिशें जारी रखी। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट। बदलते हुए आलमी हालात में जब ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी अपने अरूज पर थी तो पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने एक बार फिर निहायत तदब्बर, संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अमन के क़याम के लिए पस पर्दा सिफारतकारी और राब्तों का सिलसिला जारी रखा। जब लोगों की नजरें 22 अप्रैल 4:50 पर लगी थीं और हर गुजरते वक्त के साथ जंग शुरू होने से मुतल्लिक तशवीश बढ़ती चली जा रही थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान की कौमी क़यादत खामोशी से जंग बंदी की कोशिशों में मसरूफ़ अमल रही। फिलहाल इनकी ये कोशिशें रंग ले आईं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर जंग बंदी में तोसी का फैसला किया। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ने जंग बंदी में पाकिस्तान की इन काविशों को सराहते हुए उसे एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे नाजुक हालात में पाकिस्तान का मुतवाज़न और फ़ाल किरदार खित्ते में अमन के देर पा क़याम में इंतहाई मददगार साबित हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया और इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि जैसे ही अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होती है ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए इस्लामाबाद आ जाएगा। बातचीत के दोबारा आगाज के लिए ईरान की वाहिद शर्त नाकाबंदी का खात्मा है। पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए एक अहम संग मील करार दी जा रही हैं। पाकिस्तान माजी में भी इलाकाई तनाज़ात के हल में सिफारती किरदार अदा करता रहा है और इस बार भी इसकी ये कोशिशें आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रही हैं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी कशीदगी के इस नाजुक मरहले में पाकिस्तान ने एक बार फिर ज़िम्मेदाराना मुतहर्रिक सफारती किरदार अदा करते हुए क़याम अमन की जानिब अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी को पाकिस्तान की मुअस्सर और मुसलसल सिफारती कोशिशों का नतीजा करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर, आलमी हम आहंगी का अमीर, ये महज एक नारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की अमली सफारतकारी की वो पहचान है जो आज आलमी मंजरनामे पर वाज़े तौर पर उभर कर सामने आ रही है। हालिया आलमी पेशरफ्त के तनाज़ुर में पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को खित्ते और दुनिया में अमन के दाई के तौर पर मनवाया है। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने नहायत मुतहर्रिक और मौसर सिफारती किरदार अदा किया जिसके नतीजे में जंगबंदी को मुमकिन बनाया गया और अब इसमें तोसी भी की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जारी जंगबंदी में तोसी की मंजूरी दी। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब ईरान की जानिब से हतमी तजावीज़ जमा कराने का अमल जारी है। इस पेशरफ से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर काम कर रहा है बल्कि आलमी अमन के क़याम में एक कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली का बुनियादी मकसद खित्ते को एक मुमकिन बड़े तसादुम से बचाना और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश करना है। इस्लामाबाद ने एक मुतवाज़न, गैर जानिबदार और फाल सालिस के तौर पर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तेमाद साज़ी में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि आलमी बरादरी भी पाकिस्तान की इन कोशिशों को मस्बत अंदाज में देख रही है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को नई ताकत और वाज़ेह जहत मिली है कि वो सिर्फ अपने खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी अमन, इस्तेहकाम और बामानी मुकालमे का मौसर अलंबरदार है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल-अक़वामी महाज पर पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल हालात में अहम तरीन सिफारतकारी की है। 1971 में हेनरी किसिंजर का दौरा चीन हो या 1988 में जिनेवा अकार्ड, 2020 का दोहा मुआहिदा हो या फिर 2026 में ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी कारगर साबित हुई। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार हमेशा ही खास रहा है और मुश्किल हालात में पाकिस्तान की सफारतकारी नहायत मौसर साबित होती रही है। 1971 में जब उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर का पाकिस्तान की बदौलत चीन का कामयाब दौरा मुमकिन हुआ तो उसे पाकिस्तान की तारीखी सिफारतकारी के तौर पर जाना जाने लगा। आज एक बार फिर दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और इसकी कामयाब सफारतकारी पर टिकी हैं। सफारतकारी का ये मरहला गुज़श्ता सभी मराहिल से कहीं ज़्यादा अहम और कठिन है। आज 2026 में जब बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है, पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए ईरान, अमरीका और इसराइल की जंग रुकवाने में एक मिसाली किरदार अदा किया है।
पाकिस्तान की कोशिशों के बायस ही पहले 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी हुई और फिर ऐन जंग बंदी के आखिरी रोज जब दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए आमादा ना हुए तो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर ने जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर ईरान पर हमले रोक रहा हूँ। आज पाकिस्तान पर एतमाद का ये आलम है कि अमरीका और ईरान पेशकश होने के बावजूद किसी दूसरे मुल्क की सालसी पर रजामंद नहीं। 1988 का जिनीवा अकार्ड हो या 2020 का दोहा मुआहिदा, पाकिस्तान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम सालसी और सिफारती किरदार अदा किया है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मुहिमजोई का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन आज भी अपने जख्म चाट रहा है। उन्होंने कहा कि सिंदूर 2 की बात करने वाले सुन लें कि किसी भी किस्म की जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत ने अपने मज़मूम मकासद के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और आलमी बरादरी क़याम अमन के लिए हमारी मुखलिसाना कोशिशों की मोतरफ है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर हमें फ़ख्र है। दोबारा कोई मुहिम जोई की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार किया और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता की, पाकिस्तान को उस पर फ़ख्र भी है, नाज भी है। भारत आज भी अपने ज़ख्म चाट रहा है और पाकिस्तान एक रोशन सितारा बनकर अक़वाम आलम में उभरा है। भारतीय अस्करी क़यादत की हालिया स्टेटमेंट्स नए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो उनकी शिकस्त का इतराफ़ है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप अपने मुल्क का भरपूर दिफा करना जानती है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा और ये जवाब फैसला कुन जवाब होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। सिखों के कत्ल को देख लें, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भारत की स्टेट उसमें मुलविस पाई गई है। हमें कोई शक नहीं है कि भारत दहशतगर्दी में पाकिस्तान के अंदर मुलविस है। चाहे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया हो, खुशदार बस का इंसिडेंट हो, जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं, कहीं ना कहीं भारत का उसमें हाथ जो है वो सामने आता है। इनको इस दहशतगर्दी की पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर नाकामी होगी और मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इनको मुंह की खानी पड़ी थी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के भारतीय ड्रामे के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसकी आलमी सतह पर शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। ताहम भारत आज तक इस झूठे वाक़े से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे सका। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। और बहुत सारे सवालिया निशान जो पहलगाम के वाक़े पर लगे, जैसे कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR रजिस्टर कर ली गई और बगैर सबूत, बगैर शवाहिद, बगैर इंक्वायरी, बगैर जांच पड़ताल के फिल फॉर पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया गया। और पाकिस्तान ने जवाब में जब इंक्वायरी का कहा तो भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत वतन अजीज का भरपूर दिफा करना जानती है। हम मुतहद हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अमन के दाई के तौर पर सामने आया है। दुनिया हमारी अमन काविशों को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान को जो इज्जत और मकाम मिला है उस पर हमें फख्र है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल हो गया है, जहां मोदी हुकूमत ने अपने ही शहरियों को कत्ल करके खून की एक खौफनाक होली खेली ताकि दुनिया और भारतीयों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सके। इस पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कंजा नकवी की रिपोर्ट।
भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की पुरसुकून वादी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही निहत्थे शहरियों को कत्ल कर दिया। इस वाक़ये में मुलविस हमलावरों का पहलगाम में आकर आराम से निकल जाना और तेजी से FIR का इंदराज किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक तयशुदा मंसूबा था। इस ऑपरेशन को सियासी और माली मुफादात खुसूसन राफेल समेत दिफाई मुआहदों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 7 लाख से जायद भारतीय फौज की मौजूदगी में चंद हमलावर कैसे एक अवामी जगह पहुंचे और शहरियों को कत्ल किया, ये यकीनन सिक्योरिटी की कमजोरी के साथ एक मंसूबा बंदी लगती है। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की, जो भारत ने सच सामने आने के डर से मुस्तरद कर दी। 1 साल गुजरने के बावजूद मोदी सरकार की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से शुरू होने वाली हजीमत और रुसवाई का सफर ताहाल जारी है। भारतीय मीडिया और सियासी हलके आज भी मोदी सरकार की नाअहली पर कड़े सवाल उठा रहे हैं। कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है, ये जो भी हुआ है इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे हैं। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद होने वाले ऑल पार्टीज इजलास में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी का इतराफ किया गया। तहम जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अब तक सामने न आ सकी। मोदी हुकूमत के लिए इंसानी जानों से ज्यादा सियासी मुफादात को तरजीह हासिल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग दरअसल मोदी हुकूमत ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए कराया। आलमी बिरादरी ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत के मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया था। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात का सिलसिला शुरू किया। आलमी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को बेबुनियाद करार दिया गया। ज़ीशान अली भट्टी की रिपोर्ट। भारतीय मीडिया के इश्ताल अंगेज और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा ने हमेशा सहाफती असूलों को पामाल किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना बयानिया अपनाया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय चैनल्स ने बगैर तस्दीक के हमले को मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के तौर पर पेश करके मुसलमान मुखालिफ जज्बात को उभारा। आलमी मीडिया की जानिब से पहलगाम के हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को बेबुनियाद करार दिया गया। भारतीय मीडिया की इस गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रिपोर्टिंग को भारत के अंदर से भी तनकीद का सामना करना पड़ा। Indian media have developed a poor reputation. Television in India today is suffering a large-scale credibility crisis and not doing the very basic of journalism. वो लोग आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं? चैनलों पे देखो हिंदू मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूँ इनकी एजेंसी कहाँ पर है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ, तो ये सिक्योरिटी लैब्स है। आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना रिपोर्टिंग पहले से ही तैयारशुदा मंसूबे का हिस्सा थी। दूसरी जानिब मार्के हक के गाजी और कौम के हीरो कैप्टन अली हसन ने भारत के खिलाफ जंग को अजीम करार देते हुए कहा कि इस अहम दिफाई कामयाबी में कौम की दुआओं और पाक फौज की तरबियत ने कलीदी किरदार अदा किया। मार्का हक के दौरान जिस चीज़ ने मेरा हौसला बढ़ाया वो मेरी तरबियत थी। मेरे साथ खड़े मेरे जवान थे और मेरे पीछे मेरी कौम और कौम की माओं की दुआएं। मार्के हक में पाकिस्तान की शानदार फतह पर पाकिस्तानी नौजवानों ने वलवला अंगेज पैगामात में और पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। उनको वहमो गुमान में भी नहीं था पाकिस्तान आर्म फोर्सेज एक ऐसा रिएक्ट करेंगी कि ये उनके लिए एक डाउनफॉल की सूरत में सामने आएगा। मार्का हक ने ये साबित किया है that we are one nation, we are one country. हमने दुनिया को साबित किया है हम हर हमले के लिए तैयार हैं। मार्का हक के बाद हम पहले से ज्यादा फोकस्ड हैं, मोटिवेटेड हैं। मार्के हक में फतह से साबित हुआ कि पाकिस्तान अपने दिफा और हित्ते के इस्तेकाम की जिम्मेदारी लेने की भरपूर सलाहियत रखता है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, 22 अप्रैल पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 बरस बीत गया, मगर इस वाक़े से जुड़े सवालात आज भी जवाब तलब हैं। ये हमला क्यों हुआ, इसके पस मंज़र और मुमकिना मकासद क्या थे, ये बताएंगे मोहम्मद इशफाक खान।
22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में होने वाला हमला आज भी कई सवालात को जन्म देता है। हमला इस वक्त हुआ जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर थे। मोदी सरकार ने हमेशा की तरह इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भारत के झूठे बयानिए को समझ चुकी है। यही वजह है कि आलमी सतह पर न सिर्फ सवालात उठाए जाते रहे बल्कि इस तरह इल्जाम तराशी को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। मुबसरीन इस वाक़ये को भी माजी के मुतनाज़ वाक़यात के तसलसल में रखते हैं। भारत की फॉल्स फ्लैग तारीख तवील और शर्मनाक है। 2007 का समझौता एक्सप्रेस, 2008 के मुंबई हमले, 2019 का पुलवामा वाक़या और फिर पहलगाम। हर वाक़ये के पीछे झूठ और साजिश की एक ही कहानी है। सच ये है कि भारत अपने सियासी मफादात, इंतखाबी फायदों और पाकिस्तान दुश्मन बयानिए को तकवीद देने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है। भारत न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुलविस है बल्कि पाकिस्तान में भी अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी करवा रहा है। इसकी एक बड़ी मिसाल कुलभूषण यादव की है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस पाया गया। तज्जियाकारों के मुताबिक माजी में ऐसे हसास वाक़यात के बाद सख्त मौक़िफ़ और फौरी इल्ज़ामात ने न सिर्फ खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया बल्कि कई सवालात को भी जन्म दिया। एक बरस गुजरने के बावजूद पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात से मुतालिक सवालात बदस्तूर मौजूद हैं, जबकि इस वाक़ये के मुख्तलिफ पहलू आज भी तवज्जो और वज़ाहत के मुतकाज़ी हैं। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े को तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने और बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे की एक सोची समझी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि ये साजिश भारतीय एजेंसीज ने रचाई थी। वाक़े के फौरी बाद भारत ने कोई काबिल एतबार सबूत पेश किए बगैर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि एक साल बाद भी भारतीय हुकाम इस हवाले से झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं, जो बेशतर खुफिया एजेंसीज की गैर मुसद्दिक़ा दावों पर मबनी हैं, जिन पर आलमी फोरम्स में भी सवालात उठाए गए हैं। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने ज़िला पुलवामा में एक कश्मीरी के 2 रिहायशी मकानात को कब्जे में ले लिया है। NIA ने ज़िले के इलाके लेतापुरा में फयाज अहमद मागरे के मकान जब्त कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिवायती तरीक़ाकार से हटकर शफाफ, काबिल रसाई और अवाम दोस्त निज़ाम इंसाफ यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अदालती निज़ाम में कामयाबी से ज़म कर लिया है। इस अदालती इक़दाम से मुल्क भर में इंसाफ की फराहमी के तरीक़ाकार को नई जहत मिली है। एजाज हुसैन की रिपोर्ट। डिजिटल जिद्दत से इस्तिफ़ादा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कसीर मुकामी समातों का निज़ाम फ़ाल कर दिया है, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में मौजूद वकला और साइलिन जोग्राफियाई हुदूद से बालातर होकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। हालिया एक समात में इस्लामाबाद में मौजूद बेंच के रूबरू कोयटा, हैदराबाद और कराची से बैक वक्त वकला पेश हुए, जहाँ उन्हें दलाइल के लिए यकसा मौका दिया गया। इस इक़दाम से रवायती पेपर बुक्स पर इन्हिसार में नुमाया कमी आई है और समातों के दौरान मुकम्मल डिजिटल केस फाइल्स के इस्तेमाल से ब्रांच रजिस्ट्री से रिकॉर्ड मंगवाने की जरूरत भी खत्म हो गई है। मुकदमात का रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन और इन मुकदमात की शफाफ निगरानी के लिए बार कोडिंग के निज़ाम लाए गए हैं। ई फाइलिंग के जरिए मुकदमात के इंदराज को आसान बनाने के साथ साथ अदालती अहकामात की फौरी तरसील के लिए इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम फ़ाल और साइलिन की सहूलत के लिए डिजिटल अदायगी का निज़ाम भी मुतारफ कराया गया है। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, तहम मगरबी और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत डेरा गाजी खान, बहावल नगर 44, रोहड़ी, भक्कर और नूरपुर थल में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत इस्लामाबाद 38, लाहौर 39, कराची 34, पेशावर 37, कोयटा 32, मुल्तान में 41, गिलगित में 33, स्कर्दू में 25, मुजफ्फराबाद 26, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का।
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جرائم کی شرح میں اچانک اضافے پر نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے جرائم کے واقعات کی ویڈیوز خود شیئر کرتے ہوئے سخت برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ پولیس افسروں سے باز پرس کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو 2 سال میں مجموعی طور پر 527 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ دیا، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھیں، اب سیاسی مداخلت بالکل صفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس میں ہر قسم کی مداخلت ختم کی، اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ انتہا پسندانہ پالیسیوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کے باعث دنیا افغان طالبان رجیم سے بیزار ہو چکی ہے۔ افغان میڈیا طلوع نیوز کے مطابق افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی کے باعث اقوام متحدہ میں افغانستان کی مستقل نشست کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اقوام متحدہ کی متعلقہ کمیٹی نے تاحال افغانستان کی مستقل نشست طالبان رجیم کے حوالے کرنے سے گریز کیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق طالبان رجیم انسداد دہشت گردی، اسمگلنگ اور انسانی حقوق جیسے عالمی مطالبات کو اندرونی معاملہ قرار دے کر اپنے ناجائز اقتدار کو طول دے رہی ہے۔ سالانہ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث افغانستان مسلسل چوتھے سال بھی جنرل اسمبلی میں ووٹ کے حق سے محروم رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدارت میں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے درمیان مشترکہ حکمت عملی سے متعلق خصوصی اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ اداروں کے درمیان کوارڈینیشن یقینی بنانے، چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایئرپورٹس پر جدید مشینری نصب کرنے اور مشترکہ کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ایک ہی مقام پر چیکنگ کا نظام متعارف کرانے اور ای گیٹس کی تنصیب پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسافروں کو تیز تر کلیئرنس اور آسان سفری سہولیات کی فراہمی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہی اسکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے وقت کی بچت ممکن ہوگی، جبکہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی سے ایئرپورٹس پر رش اور انتظار کے دورانیے میں بھی کمی لائی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے M6 موٹر وے کی تعمیر کے سلسلے میں ایشیائی ترقیاتی بینک اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ M6 موٹر وے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی شاہراہ ہے۔ جو منصوبہ گزشتہ 30 سال میں شروع نہیں ہو سکا، اسے موجودہ حکومت نے 2 سال کے عرصے میں شروع کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ کیسر احمد شیخ نے لندن میں اہم ملاقاتوں کے دوران عالمی مالیاتی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں سے مشاورت کی، جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ، اقتصادی تعاون کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کو ترجیح دے رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش منزل کے طور پر متعارف کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملاقاتوں میں مالیاتی شعبے میں پیشہ ورانہ معیار، مہارتوں کی ترقی، جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل مالیاتی نظام سے ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ قیصر احمد شیخ نے کہا کہ ابھرتی معیشتوں میں مہارتوں اور ٹیکنالوجی کا فروغ ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی تعاون مزید مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کردار کو اقتصادی سفارتکاری میں اہم قرار دیا گیا۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کے درمیان گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کراچی سرکولر ریلوے ٹریکس کی اپگریڈیشن، سیکیورٹی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ ریلوے کے نظام کو محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ ٹرمینل سے پورٹ قاسم تک ریلوے منصوبہ تشکیل دے رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ عوام کو محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹرمینل سے پورٹ قاسم تک ریلوے منصوبے سے شہر میں ٹرک ٹریلرز کا لوڈ کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں ریلوے نیٹ ورک کی توسیع ناگزیر ہے۔ کراچی سمیت بڑے شہروں میں ریلوے سہولیات مزید بہتر بنائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئلہ پھاٹک تا چمن پھاٹک بلیک ٹاپ سڑک کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختصر مدت میں شاہراہ کی تکمیل حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور کارکردگی کا ثبوت ہے، جبکہ لاگت میں بچت شفافیت کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک کی تعمیر سے ٹریفک کے دباؤ میں کمی اور آمد و رفت میں بہتری آئے گی اور حکومت معیاری انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر سڑک کو 2 رویہ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ سیکریٹری مواصلات و تعمیرات کے مطابق 1.02 کلومیٹر طویل سڑک محض 76 دنوں میں مکمل کی گئی، جس پر 33 کروڑ 83 لاکھ لاگت کا تخمینہ تھا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس منصوبے سے ایئرپورٹ روڈ، شہباز ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کے ہزاروں شہری مستفید ہوں گے۔
नाज़रीन, खेल में खुश आमदीद। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में पेशावर ज़ल्मी की फतूहात का सिलसिला जारी है। ज़ल्मी ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए कराची किंग्स को 7 विकेटों से हराकर 8वीं कामयाबी समेटी। लाहौर में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 182 रन स्कोर किए। ओपनर जेसन रॉय ने 51 गेंदों पर 85 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 11 चौके शामिल थे। आजम खान ने 35 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स 13 जबकि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा 12-12 रन स्कोर कर सके। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर ज़ल्मी ने 183 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इवेंट के टॉप स्कोरर कुसाल मेंडिस ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 43 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 80 रन बनाए। उनकी इनिंग्स 4 छक्कों और 5 चौकों पर मुश्तमिल थी। फरहान यूसुफ 36 गेंदों पर 58 रन बनाकर नॉट आउट बैठे रहे। उन्होंने 3 छक्के और 5 चौके लगाए। PSL के मैचेस PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 33वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 214 रन का हदफ दिया है। जवाब में हैदराबाद की बैटिंग जारी है। कराची में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 213 रन बनाए। ओपनर्स ने सुल्तान्स को 132 रन का मजबूत आगाज फराहम किया। स्टीवन स्मिथ ने सिर्फ 47 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने 6 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 106 रन की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान ने 43 गेंदों पर 66 रन बनाए। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से आकिफ जावेद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL के तमाम मैचेस PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर अली रजा पाकिस्तान सुपर लीग में हैट्रिक करने वाले 7वें बॉलर बन गए। 18 साला अली रजा ने कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में खुशदिल शाह, शाहिद अजीज और हसन अली को आउट करके हैट्रिक मुकम्मल की। ये PSL तारीख की मजमूई तौर पर 7वीं हैट्रिक है। इससे पहले मोहम्मद आमिर, इमरान ताहिर, जुनैद खान, मोहम्मद समी, अब्बास आफरीदी और अकील हुसैन PSL में हैट्रिक कर चुके हैं। हैट्रिक करने के बाद अली रजा ने कहा कि सीनियर फास्ट बॉलर से सीखता हूं। हैट्रिक का क्रेडिट क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने मेरे रीहैब में मुझे बहुत सपोर्ट किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का नशा आवर शय का टेस्ट मुस्बत आने पर मामले की तहकीकात का फैसला किया है। मोहम्मद नवाज का टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान मुस्बत आया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस हवाले से PCB को आगाह कर दिया है। ICC की जानिब से मालूमात फराहम करने के बाद PCB ने मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। टेस्ट में मोहम्मद नवाज पर रिक्रिएशनल ड्रग इस्तेमाल करना साबित हुआ है। साबिक ओलंपियन और कौमी हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर समीउल्लाह ने कहा है कि मुनासिब रहनुमाई से पाकिस्तान हॉकी खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकता है। पेशावर में कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए समीउल्लाह ने कहा कि कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए अहम इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मजबूत और मुसाबकती टीम तश्कील देने के लिए ट्रायल शुरू किए हैं, जिसके तहत अंडर 18 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। साबिक ओलंपियन नासिर अली ने कहा कि हॉकी का सवाल स्कूल सतह पर हॉकी ख़त्म करने से हुआ, अब दोबारा स्कूलों की सतह पर हॉकी को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जा रही है। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।